Okay. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सकीना है और आज का सेशन मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ। ठीक है। थ्रू आउट द सेशन अगर कैमरास ऑन रहेंगे सो वो मेरे लिए भी काफी इंटरैक्टिव होगा। ठीक है, सो ट्राई टू कीप योर कैमरास ऑन। ऑलराइट, कूल। कैन आई गेट थम्स अप? थैंक यू। ओके, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं खुद को इंट्रोड्यूस करूंगी। ओके, और मैं कहाँ से हूँ। वैसे ही uh, आप अनम्यूट करके आप खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, एंड मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ से हो। ओके, ग्रेट। आई स्टार्ट। मेरा नाम सकीना है। ओके, और मैं मुंबई से हूँ। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई एंड अभी फिलहाल मैं बैंगलोर से हूँ। ठीक है, आज का सेशन मैं फैसिलिटेट कर रही हूँ। या, दैट्स इट। थैंक यू। कैन आई हैव people can start introducing themselves. All right. So can I go as speaker number 1? Okay. So hello everyone. My name is Aman Patel. I am a chemical engineer by studies. I have graduated and post graduated in 2023. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. Thank you, Aman, and welcome for today's session. Hello everyone, I will be go as the speaker too. My name is Sarthak Oberoi. I am an advocate based out of Delhi and I am been associated with TISA for last 2 years. So yeah, that's all about me. Thank you. Okay, thank you, Sarthak. हम एक अगर जल्दी जल्दी इंट्रोड्यूस करते एक के बाद एक, सो विल हैव मोर टाइम फॉर सेशन. Hello everyone. Myself Rohil. I belong to Nagpur, Maharashtra. Thank you. Thank you, Rohil. Hello everyone, myself Sarthak Brahmla. I am from Himachal Pradesh and I have been associated with TISA from 2021. So this is my introduction. हेलो, Thank you, Sarthak. मेरा नाम विवेक चौधरी है। मैं गुजरात से हूँ और मुझे टीसा को ज्वाइन किए हुए 4 साल हो चुके। मैंने मार्च 2020 में ज्वाइन किया। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Vivek. Hello everyone. Hello. My name is Pallavi. I'm from Assam and currently मैं बैंगलोर में रह रही हूँ. Thank you. Thank you, Pallavi. हाँ जी, साहिल. हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अभिषेक है और मैं फरीदाबाद से हूँ। मैं डिजिटल मार्केटिंग पे जॉब करता हूँ। ओके, थैंक यू। Thank you. Hello. Hello everyone. I am Anurag Agarwal. I am basically from Chhatarpur. It is a district in Madhya Pradesh and currently I am working as a junior marketing supervisor in Ujjain. So yeah, this was a brief intro about me. Thank you so much. Thank you. Thank you for sharing. Good evening, all of you. So, मेरा नाम मोहम्मद साहिल है। मैं गुजरात का
रहने वाला हूँ। थैंक यू साहिल। हाय एवरीवन, मेरा नाम गायत्री है और मैं मुंबई से हूँ। थैंक यू। थैंक यू। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे प्लीज। Hello everyone. My Vivek Kumar. I am from Madhubani, Bihar. Thank you. थैंक यू विवेक। और मेरा नाम है राज मंसूरी और मैं बिलोंग करता हूँ अहमदाबाद गुजरात से। थैंक यू। थैंक यू राज। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम मितेश ठक्कर है, मैं गुजरात हूँ और मुझे टीसा ज्वाइन किए हुए 11 साल हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मितेश। अभिमन्यु, ओके, समवन वाज शेयरिंग। या मैं ओके मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ओके, मेरा नाम सूरज है, मैं हैदराबाद से हूँ। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सूरज। Okay. Hello everyone. My name is Chris Kesri. I am from Bihar. Thank you. That's थैंक यू। दरवाजा बंद कर दियो, बाहर डाल दो। मैंने खाना का निकाला तो कहियो मैं थोड़ा बात खाऊंगा। ओके, Abhimanyu, would you like to introduce yourself? Okay. Harun? I'm just calling out name. Please, if they are there, they can introduce themselves. Vivek, Gudan, Suraj, Sartak, Sahil, Ram. Ram, are you there with us? Harun, would you like to introduce yourself? Hello, Sakina. Yeah, I'm there. So, yeah, hello. This is Ram, and I'm Haji. from Hyderabad. Yeah, I've been into TISA, I think, since 10 years now. So, yeah, Wow. thanks for the opportunity. Thank you. Thank you for joining us today. Harun, would you like to go next? Yes, thank you, Sakina ji. My name is Harun Rashid. I am from Lahore. I'm connecting with TISA from 11 months back. Thank you. Thank you. Thank you, Harun. I hope हम सबको introduce करने का chance मिला है. If I'm missing out someone, please unmute yourself and introduce. Okay, ठीक है. हम क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो डिस्कशन होगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन होगा. ओके, एंड इन बिटवीन अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ या तो जो हम यहाँ पे बात करें उससे रिलेटेड, आप प्लीज पूछ सकते हैं. ठीक है. इन बिटवीन एक गाइडेड मेडिटेशन होगा, राइट?
सो आई वुड सजेस्ट कि आप मैसेज पे सवाल पूछ लीजिए, ओके क्योंकि डीप मेडिटेशन के टाइम पे सब अपने ध्यान में होंगे, सो हम ट्राई करेंगे कि वो भी डिस्टर्ब ना हो, राइट? ओके, थैंक यू। सो अभी के लिए व्हाट आई वुड लाइक यू ऑल टू डू इज, आप स्लोली मैं एक म्यूजिक प्ले करूंगी, ठीक है? आप स्लोली अपने सीट से ऊपर उठिए, आप यू नो बॉडी मूवमेंट कीजिए, यू कैन डांस, यू कैन रोम अराउंड, ठीक है? एंड जो आपकी जो स्पेस है ना आसपास, ओके जहाँ पे आपका टेबल होगा जो भी है, ओके उसके पास की जो एरिया है आप वो भी थोड़ा सा उसको पुश करके, ठीक है, जो भी सामान है उसको पुश करके आप अपने लिए स्पेस क्रिएट कीजिएगा ड्यूरिंग द बॉडी मूवमेंट, ओके? ठीक है, मैं सॉन्ग स्टार्ट करती हूँ, आप मुझे थम्स अप देख के बता सकते हो कि इफ यू कैन हियर द म्यूजिक, ओके? Yeah, get out of your chair. स्ट्रेच कीजिए आपकी बॉडी जैसे भी आपको चाहिए, मूव अराउंड, यहाँ पे आप रिलैक्स हो। जितना आप स्ट्रेच कर सके, आपकी बॉडी को फ्री कर सके, मसल्स को टेंशन फ्री कर सके। एंड मूव करते करते ही आपके आसपास जो फर्नीचर है उसको हम हटा सकते हैं, ठीक है? कि हमारे पास वो पूरा एरिया आ जाए। मूव अराउंड, इसी फ्लो में आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो, आपको लेट जाना है, आपको कंफर्टेबली बैठना है, जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है, स्लोली कम बैक टू योर सीट एंड वो कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं या तो लेट सकते हैं। अगर आप बैठे हैं, अगर नीचे बैठे हैं या तो कुर्सी पे बैठे हैं, आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। Once we are back, I'd like you to sit in your position. Get comfortable. Relax your shoulders. Unclench your jaws. Slowly close your eyes. And take a deep breath in. Hold.
Slowly breathe out. Breathe in. Hold. Slowly breathe out. Allow your breathing to set in its own rhythm. अपना ध्यान आपकी स्टमक पे लाइए. ऑब्जर्व कीजिए it moving as you breathe in and breathe out. Slowly अपना फोकस आपके forehead पे लाइए, center of your eyebrows. Stay there for a while. If you feel distracted, bring your focus back on your breathing. Now, imagine the space between your eyebrows getting wide. वो gap बढ़ते जा रहा है. Slowly, slowly, वो बड़ा हो रहा है. And जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आप अपने सामने ये दुनिया देखते हैं. ये बड़ी सी दुनिया जहाँ पे सब रहते हैं. The big, beautiful world. आप दुनिया आपके सामने देख रहे हैं. आप दुनिया से बाहर है. दुनिया आपके सामने है. While you see the world, you see combination of blue, green, and brown. जो बड़ी सी दुनिया है, जैसी भी है, आप उसको पूरा आपके सामने देख पा रहे हो. अब ये जो दुनिया है, आप उससे बाहर हो. आप क्लियरली देख पा रहे हो दुनिया कैसी है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या कम है. ऐसा क्या है जहाँ पे ये बड़ी सी दुनिया कुछ अधूरी सी है. जब आप उसको चारों ओर से देख रहे हो, उसमें कुछ मिसिंग सा लगता है. कुछ गैप्स है जो खाली है.
Observe, observe, observe. अब ये जो दुनिया हमने देखी जिसमें कुछ खाली है, कुछ मिसिंग है, कुछ कमी है हमारे बिना, हम उससे बाहर है तो कुछ अधूरा सा है, उसमें कुछ खालीपन है। इसी खालीपन को, यही जो अधूरा सा लगता है, जो मिसिंग लगता है, उसको हम कैसे भरेंगे? उसमें हम क्या ऐड करना चाहेंगे जिससे वो पूरा हो, भरा हुआ हो? जैसे जैसे आपको ये सवालों का जवाब मिले, स्लोली अपनी जगह से खड़े होकर आंखें बंद रख के इमेजिन कीजिए आपके हाथ में पेन है, पेंसिल है, क्रेयॉन है, पेन ब्रश है, जो भी आपको चाहिए उसी का इस्तेमाल कीजिए। और जहां पे भी आपको लगता है ये खाली है, ये अधूरा है, इसमें कुछ मिसिंग है, उस दुनिया में आप अपना रंग भरिए, उसी दुनिया में आप लिखिए, ड्रॉ कीजिए, जो खाली गैप्स है उसको फिल कीजिए। जो कमी सा लगता है आप उससे खुद से भरिए। अपने रंग से, अपने शब्दों से,
एक दफा और देखिए, चेक कर लीजिए कहीं कुछ छूट ना गया हो, जहां हम कुछ ऐड कर सकते हैं, उसको पूरा कर सकते हैं। हमारे कलर्स से और शब्दों से खूबसूरत बना सकते हैं। जब भी आपको लगे ये हो गया है पूरा, जो भरना था हमने भर दिया, जो कंप्लीट करना था हमने कर दिया, स्लोली अपनी सीट पे आ जाइए। एक बार फिर से उस दुनिया को देखिए जिसमें हमने अभी उसमें फिल करके उसको पूरा किया है, कंप्लीट किया है, पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया है। चारों ओर से देखिए, स्लोली अपना ध्यान अभी में लाइए। आप जो कमरे में हैं, वो कमरे में आप क्या महसूस कर रहे हैं? कमरे के बाहर जो आवाज है, स्लोली अपना ध्यान अभी में लाइए। Slowly open your eyes whenever ready. Rub your hands, rub your eyes. Are you back? Are you all back? Give me thumbs up. Yeah. Take some time, have some water. If you wish, you want to move around, it's okay. Take your time to move around, have some water. Ground yourself. Okay. Are you all back? Yeah. Okay, great. Would you like to share आपका एक्सपीरियंस क्या था? क्या अधूरा सा था? क्या आपने भरा? कैसे भरा? भरने के बाद क्या हुआ? यस रोहित।
Hello. Hello. Am I audible? Yes, yes, Rohil, you are. Yeah, thank you. So, so when I was imagining a world, so I saw a world where कुछ parts में खाना बिल्कुल नहीं है, and कुछ parts में like they are suffering from disease, from wars, from the scarcity of water. So I just fulfilled whatever was not in that part of the world, like food, water, and so then at the end they all were happy, and so at the end even I felt good. Thank Okay. you. Thank you, Rohil. Aman, आप म्यूट पे है. Host, yeah, okay. So, when I was imagining a world where people are busy a lot. People are busy in their work, and they are not taking time for themselves to sit quietly under tree, and I want to. So I have seen this is a uh, one, I would say, problem in the world, which I feel I would be enjoying in the, I mean, which I found uh, I am uh, healing it. So, yeah, so I mean, I just want to say, in the world where everyone is busy in his job, in his work, we have to find out uh, some time where in which we can sit quietly, and we can just observe people around us, and we can just observe nature around us. Okay. Thank you for sharing. अनुराग, मैं आपसे पूछूंगी. जस्ट जब हम शेयर कर रहे हैं, ओके, आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू ऐड कि यू बीइंग यू, जो आप हो, है ना, उसमें आपने कैसे ऐड किया, क्या ऐड किया कि वो कंप्लीट हुआ, वो पूरा हुआ, वो प्रॉब्लम जो थी वो सॉल्व हुई. ठीक है. रोहिल, अमन, आई वुड लाइक टू नो. I'll first go to Anurag. Okay. Yes, Anurag. Hello, everyone. So, first of all, I want to thank Sakina ma'am, because in the beginning that body movement exercise, it was very nice for me. काफी relaxation feel हुआ था जब बिना hesitation के थोड़ा सा डांस टाइप का किया. देन जो इमेजिनेशन वाला सेशन था, उसमें जो एक एम्प्टीनेस, मतलब मैंने जो वर्ल्ड इमेजिन किया था, उसमें मुझे सब अच्छा फील हो रहा था. आई वॉज इमेजिनिंग अ गुड वर्ल्ड. कुछ पार्ट मिसिंग था. दैट मिसिंग पार्ट वाज मी इटसेल्फ. मुझे खुद फील हो रहा कि मैं अभी जहाँ हूँ एंड जहाँ मैं अपने आप को चाहता हूँ वहां पर, तो मैंने बस उस पार्ट को थोड़ा चेंज किया था. ऑनेस्टली कहूँ तो मैं जिस जॉब में हूँ, तो मैंने अपने जॉब प्रोफेशन को चेंज किया था कि अभी मैं यहाँ हूँ. नाउ आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ इनटू दैट डिफरेंट प्रोफेशन, एंड वो एक अलग वाइब थी जो मुझे काफी अच्छी फील हुई. तो एक जो एम्प्टीनेस अभी फील होती है, वो एम्प्टीनेस एक डिक्रीज हो पाई थी, एंड दैट वाज एन अमेजिंग फीलिंग. सो
Thank you so much for this type of activity. Yeah. And Thank you. last में सार्थक को देखकर क्लियर भी आया था, वो जिस तरीके से अपने हाथ की उंगली को काफी देर से he is moving, तो क्लियर भी आया था मुझे. So yeah, so I end my talk. Thank you. Okay, okay. I hope आप थोड़ा सा बेटर फील कर रहे हैं. वो जो फियर है वो भी नहीं फील कर रहे हैं, या तो कम फील कर रहे हैं. हेलो अनुराग. Hello. Yes, हाँ you जी. हाँ are asking something. हाँ जी. जो फियर आपने कहा, आई होप आप थोड़ा सा कम फील कर रहे हैं, या तो आप No, बेटर फील. this fear was something else. It was a joke in itself. I'm sorry for that insane joke. Sorry. It's okay. Okay, as long as you're doing well. Thank you. Okay. Okay. हाँ जी. Sartak Oberoi. Yeah, so to be honest, it was a self-centered thought. I went back to the time when I feel humiliated or feel ashamed just because of the stammering problem. So I gave a human test that what best can be done at that period of time. The precision, the perseverance, the patience, the proper way to handle that situation because I'm more mature now. So I just gave me a second chance to let the thing be the way it is. And basically मैंने उस टाइम पे जाके जो चीजों में आज जो थॉट प्रोसेस के साथ उसको हैंडल करता हूँ, उस थॉट प्रोसेस का जानने का ट्राई किया कि उस टाइम वो मेरे पास वो थॉट प्रोसेस क्यों नहीं था. एंड दी बेसिक थिंग कि लेट इट गो, कि हम सबको माफ कर सकते हैं और ये जो बोझ और ये जो बैगेज हम अपने साथ लेके चलते हैं हम इसको छोड़ सकते हैं. So, yeah. Okay, okay. वो छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है सार्थक? बहुत हल्का महसूस होता है. Okay, okay. I'm glad. Thank you for sharing. Anyone else would like to share? आपका एक्सपीरियंस, हमने क्या भरा, जो दुनिया हमारे सामने थी. हाँ जी पल्लवी. Yeah. So I basically imagined the world what we have today, a very basic world where we are missing just the basic things like डे इन डे आउट पे किसी के साथ थोड़ा सा काइंड रहना, या फिर किसी को मतलब इफ समवन इज हैविंग अ बैड डे तो जस्ट पूछना कि आर यू ओके, मैं कुछ कर सकती हूँ. सो सो आई वाज इमेजिनिंग दिस वर्ल्ड, एंड व्हेन जब भरना था तो आई ट्राइड टू फिल इट विथ मोर लव, compassion, kindness, पेशेंस. सो ऑल दिस बेसिक चीजें जो हमें डे इन डे आउट पे हम जब लोगों से मिलते हैं जो हम भूल जाते हैं कि हमें करना चाहिए. सो आई ट्राई टू फिल इट विद दैट, एंड आई पर्सनली थिंक कि मैं जो है मैं काइंडनेस लेके आती हूँ, मतलब बिकॉज सम मतलब बोथ वेज. व्हेन आई से बोथ वेज, इसका मतलब है कि मैं खुद ट्राई करती हूँ टू बी काइंड, टू रिमेम्बर दैट अगर कोई मतलब किसी तरीके से कुछ बोल रहा है, देन कुछ भी रीजन हो सकता है, राइट? that person might be having a bad day, or we don't know what is their story, what is happening right behind the scenes. So I try to be kind. And second thing is, sometimes I can be a very difficult person to be handled. So I think the other person also somewhere can learn to be kind when they are with me. So yeah, that's what I did. Thank you. Okay, okay. Thank you, Pallavi.
रोहिल, वुड यू लाइक टू शेयर कि आपने कैसे वो चीजें में ऐड किया जहाँ पे हमने फूड शॉर्टेज देखा एंड वॉर देखा? डेफिनेटली जैसे कि मैंने जो दुनिया इमेजिन किया था, सो सो उस दुनिया के कुछ पार्ट्स में काफी वॉर था. इट वाज वॉर एंड डिस्ट्रक्शन ऑल्सो. सो जब वॉर्स होते हैं, सो मेन एंड women they have to pay a very high high price with their uh, with 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 their life. And in some different part of the world, so due to the very stressful life of some couples, so they were not able to have a ba- baby. So फिर जो वॉर टोन जोन के जो बच्चे थे, so then I just transferred those babies to those parents who were not able to become a parent. ऑल्सो जिस जोन में खाने की बहुत शॉर्टेज है, so then I just brought up few multi-millionaires from various country, जैसे कि अपने ही कंट्री से सर रतन टाटा and many more, and then USA, Canada, and then all. And then they just founded up one organization where they are providing nutritious foods to some very poor and malnourished children. And then in that way they all are happy. So then that was just the gist of my small world. Okay, okay. Thank you for sharing. If I can continue on this, Rohit, क्या था जहाँ पे आपने पूरी दुनिया में से आपने वो चीज देखी और नोटिस किया, आप में वो क्या है, ऐसा कैसा चश्मा पहना है आपने कि आपने वो नोटिस किया, क्या एबिलिटी है, क्या स्किल है? Could you please pardon the sentence? Yes. What I'm asking is, आपने वो कौन सा चश्मा पहना है जहाँ पे आपने चीजें नोटिस की, ऑब्जर्व की, आपका वो स्किल क्या है, एबिलिटी क्या है, जो दुनिया में ये जो कम था वो आप देख पाए? Basically being a person who stammers, मैं ये बात बचपन से ही सीख गया हूँ कि we all are fighting our own battles. क्योंकि अगर मैं मेरी या फिर सार्थक जी या फिर कोई भी और दूसरे PWS की बात करूं, तो वो बचपन से शायद वो सोचते हैं कि लाइक जब बाकी बच्चे इतने फ्लुएंटली बात कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. तो फिर so then I guess that was one of the skill which I have learned from my childhood, that we all are fighting our own battles. And so that's why बाकी लोग भी कोई ना कोई उनके इंटरनल बैटल फाइट कर रहे हैं. जैसे कि जो वॉर टोन जोन के जो छोटे बच्चे हैं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइक छोटी छोटी मदद के लिए हम किन के पास जाए. So then that was it. Okay. Thank you so much for sharing. Thank you. And thank you for adding to the missing world. Okay. Would anyone else like to share? Okay, no problem. ठीक है. So आज का जो सेशन था, ठीक है, पोस्टर पे आपने देखा होगा वो सेल्फ एस्टीम पे था, है ना.
ये चीज हम खुद से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? Please repeat your question again. I could not understand. हाँ, जो हमारा टॉपिक है आज का सेल्फ एस्टीम है ना, उससे हम ये कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? Self-esteem, right? हाँ जी। Okay. Okay. I feel as I think as we are seeing all the word in the way in which we have been conditioned. So I feel I think all those things which we are also liking. We want to see. We are seeing all those things in the world, and we want to fulfill those things. As I said in the beginning, in today's world, people are too much busy in their work. So I'm seeing a world where people are being free and they are sitting quietly under a tree and observing everyone around them. So I think it is the thing which is inside me. I mean, I want to be, in that way. So yeah, I think it is rated in this way, I guess. Okay, okay. Thank you. Thank you. Rohil, I saw your hand was up. हाँ जी। तो या सो देन आपका जो सवाल था कि लाइक इस एक्टिविटी को हाउ कैन बी कनेक्टेड विद आवर सेल्फ एस्टीम। सो जितना मैं अब तक समझ पाया हूँ कि लाइक यू टोल्ड अस टू ऑब्जर्व व्हाट लाइक इस दुनिया में क्या कम है, एंड देन लाइक वी आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम्स, and when I solved all those problems, so I naturally felt very good, and I also felt confident. Okay, okay, okay. Thank you for sharing. Thank you. I just need a minute, please. Yeah, I'm so sorry for that. Thank you for waiting. Okay, so हाँ, जैसे अमन एंड रोहिल ने शेयर किया, किसी और को भी शेयर करना है बिफोर वी मूव अहेड? हाँ जी हरुण। थैंक यू। मिस सकीना, आपने मुझे अपनी पर्सनैलिटी से अरुण आप से रिलेट कर सकते। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो ऑफ कर लूँ ताकि आप तक मेरी आवाज़ ठीक तरह से पहुँच जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि सेल्फ एस्टीम को हम अपनी पर्सनैलिटी से इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम हमारे अंदर एक वर्थनेस, एक वैल्यू ऐड करती है और हमें बताती है कि हम में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि दूसरों से डिफरेंट है, और हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। और अगर कोई हमारे पर क्रिटिसिज्म भी करता है तो हम उसे एज ए पॉजिटिव वे में उसे लेते हैं, और हम अपने अंदर ये फीलिंग पैदा करते हैं कि आई एम अ
competent person, I am a worthy person, and I can do something in my life, और हमें वो लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखने का मौका देती है। थैंक यू। जी जी, thank you for sharing. Okay, would anyone else like to share your thoughts? Okay, okay. जैसे रोहिल, हरुण एंड अमन ने बताया कि जो सेल्फ एस्टीम होता है, ओके, वो हमारे थॉट्स पे है कि हम क्या बोल रहे हैं खुद को। अगर मैं बोलूं, अगर मैं किसी सिचुएशन हूँ, प्रेजेंटेशन देना है, और मैं खुद को बोलूं कि अरे जल्दी जल्दी बोलना होगा, मुझे ऐसे बोलना होगा कि बाकी लोग समझ जाए, मेरी टीचर समझ जाए, मेरा बॉस समझ जाए, है ना, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, नर्वस नहीं होना होगा, है ना, मुझे कॉन्फिडेंट बनना है। मैं क्या करूँ, मैं खुद पे उतना प्रेशर डाल रही हूँ, है ना, एट दी एंड मैं खुद नर्वस होके, एंशियस होके कुछ ऐसा बोलूंगी या तो कर जाऊंगी जो मुझे एक्चुअली नहीं करना था, और मैं शायद नहीं भी करती, है ना। अगर मैं वही चीज खुद को बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, हो गया, आई नो व्हाट आई एम सेइंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, है ना, मुझे पता है प्रेजेंटेशन के टाइम पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आई एम डूइंग वेल। ओके, हमने वो लास्ट वर्कशॉप एंड लाउंज मीटिंग में सेल्फ टॉक के बारे में बात किया, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, है ना। द मिनट वी आर सेइंग दिस, हमें वो कॉन्फिडेंस जग जाता है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है तो मैंने कर लिया, मुझे पता था क्या कैसे बोलना है तो मैंने बोल लिया, ओके, तो मेरी बात हो गई, है ना। कभी कभी लगता है कि अरे मैं जो प्रेजेंट कर रही हूँ, जो मेरा बिजनेस मॉडल है, वर्डी है कि नहीं है, मैं सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, है ना। क्या हो रहा है कि मैं फिर से वो खुद को नेगेटिव बता रही हूँ, है ना। और मैं जो भी प्रेजेंट कर रही हूँ, जैसा भी प्रेजेंट कर रही हूँ, 5 लोगों में से 2 लोगों के तो काम आएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे काम करती हूँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा, स्पेशली हिंदी, अभी तक तो थोड़ा पता होगा कि मैं काफी टाइम लेती हूँ बोलने में, क्योंकि मेरे दिमाग में वो इंग्लिश से मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करना है, राइट। एंड यही चीज जब मैं दुकान में भी करती हूँ, ओके, एक दुकानदार होगा जो शायद ऐसे चिढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, और दूसरा दुकानदार होगा जो पॉज लेगा ना, उसको अगर वो मेरे लिए टाइम दे रहा है तो वो समझ रहे हैं कि काइंडनेस क्या होता है ना। सो आई एम एडिंग दैट काइंडनेस, आई एम ब्रिंगिंग द बेस्ट इन द पर्सन। मैं पेशेंस, वो लोग सीख रहे कि पेशेंस कैसे रहता है, पेशेंस कैसे होना चाहिए। जैसे बच्चे है ना, बच्चे और या तो एनी पेट्स दैट यू हैव, वी लर्न हाउ टू लव, हाउ टू शो लव, पेशेंस से कैसे उनसे डील करें, है ना। वो जो भी एक्ट कर रहे हैं हम उससे सीख रहे हैं, राइट। सिमिलरली हम जहाँ पे भी स्टेप कर रहे हैं, जैसे भी हमें सामने वाला हमसे सीख रहा है, तो हम जैसे है ठीक है, सही है, सिर्फ 1+1 ऐड होके हम 2 बनाएंगे, राइट। दिस इज हाउ वी ऐड अ वैल्यू टू वर्ल्ड। ठीक है अगर मैं स्लो बोल रही हूँ, ठीक है अगर मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है अगर मैं काम करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती हूँ। दिस इज हाउ वी लर्न, दिस इज हाउ वी ऐड वैल्यू टू द वर्ल्ड। जो ये कमी है जहाँ पे लोग भाग रहे हैं, तो मुझे मैं थोड़ा सा टाइम लूँ तो एटलीस्ट मैं उनकी हेल्प करूँ ना, पॉज ले लो, ठीक है 2 मिनट खड़े रह जाओ कुछ नहीं होगा। Indirectly they learn how to take the pause, they learn how to wait. Waiting itself is helps us to learn to be patient, na. Okay, any thoughts? Nothing? Yes, Gayatri. Okay, Harun has his hand raised, so he can go first and then maybe I can continue. ओके, थैंक यू मैम। Yes. मेरा मिस सकीना से एक क्वेश्चन है कि हम फील करते हैं कि कभी
कभी हमारे अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी कभी बहुत कम हो जाती है। यानी कोई ये ऐसी चीज है जो कि फ्लक्चुएट करती रहती है। तो इसके पीछे क्या रीजन है और हम इसे किस तरह से मेंटेन करें कि वो कभी कभार बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, बल्कि वो मेंटेन रहे हमारी लाइफ में। ओके ओके। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अरुण जी आपको लगता है कि सेल्फ एस्टीम यहाँ पे इतना ही होना चाहिए, ये इतना सा थोड़ा ज्यादा हो गया है? वो कैसे पता चलता है कि यहाँ पे ज्यादा हो गया है? यानी कि जब मुझे अपनी लाइफ में कोई खुशी मिलती है तो उस मौके पर सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब कोई चीज छिन जाती है, कोई चीज गुम हो जाती है, या जैसे मैंने अपनी लाइफ में सोचा होता है कि मेरे साथ ऐसा होगा और वो नहीं होता, तो फिर सेल्फ एस्टीम कम हो जाती है। राइट राइट। सो सेल्फ एस्टीम इमोशंस की तरह, इमोशंस पे फ्लक्चुएट हो रहा है कि आज ज्यादा है तो कल थोड़ा सा कम हो सकता है या तो होगा, है ना? मैं सेल्फ एस्टीम को अभी तो पैसे की तरह ही देख रही हूँ कि कल ज्यादा था तो आज थोड़ा सा कम है। जब मेरे पास ज्यादा था तो मैं थोड़ा सा सेव कर लूँ, एंड जब कम है उसको ही यूज कर लूँ। तो वी आर एबल टू बैलेंस, है ना? सेल्फ एस्टीम हमारे, हम जो खुद को बोल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं उस पे है ना? अगर दिन काफी अच्छा जा रहा है, मैं काफी खुश हूँ, तो ऑटोमेटिकली मैं खुद को बोल रहा है काफी अच्छा दिन जा रहा है, काफी खुश हो महसूस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरे सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते जा रही है ना? तो ठीक है, जितना है उसका, उसको भी हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। जिस दिन नहीं लग रहा है सेल्फ, थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा लो लग रहा है ना? उस दिन बातें भी वही होती है, काम काम ही ऐसे उल्टे हो जाते हैं कि अरे चलते चलते गिर गए, है ना? पानी पीते पीते पानी गिर गया, फिर वो सब क्या कर रही हूँ यार मैं, एक एक ये काम भी मैं सही से नहीं कर रही हूँ। तो जहाँ पे बढ़ने के लिए मैं पॉजिटिव ऐड कर, तो मैं ही खुद को नेगेटिवली बोल रही हूँ। नेगेटिव मतलब खुद को डांट रही हूँ या तो थोड़ा सा कम प्यार से बात कर रही हूँ। वही जो प्यार मैंने 2 दिन पहले खुद को बताया था, मैं वो प्यार आज खुद को बता रही हूँ। ठीक है सकीना, क्या हुआ? क्यों घबरा रहे हो? क्यों काम ठीक से नहीं हो रहा है? ध्यान कहाँ पे है? कुछ ऐसा करे जहाँ से ध्यान आ जाए। थोड़ा सा प्यार से बात करते हैं, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, तो थोड़ा सा पानी ले लो, काम से ब्रेक ले लो। वो इतना तो नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा कि हाँ ठीक है, मैंने खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करा दिया, है ना? कुछ नहीं किया तो थोड़ा सा एक एपिसोड देख लिया कॉमेडी वाला, या तो एक चॉकलेट खा ली, या तो ठीक से खाना खा लिया मैंने। खाना खाते ही ऑटोमेटिकली वो अच्छा फील होता है, फिर उससे वो पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो सकता है कि ये काम नहीं करना, अभी ऑफिस का काम नहीं करना, कपड़े धो ले, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर कपड़े कपड़े काफी दिनों से नहीं धोए, तो वो एक काम जो नहीं हो रहा था वो भी कर लिया, तो मुझे पता है मैं काम कर रही हूँ। तो धीरे 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 वो फिर से बढ़ता है। और जो सेव किया था उस दिन, वो मैं फिर से ला रही हूँ। 2 दिन पहले तो तुमने अच्छे से किया था ना, आज सिर्फ टेंशन में हो तो ठीक है, नहीं हो रहा है पर हो जाएगा, रिलैक्स कर लो, काम डाउन हो जाओ, है ना? एकदम पॉजिटिवली बात भी नहीं करे पर प्यार से बात करे, तो वो ऑटोमेटिकली धीरे 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 बढ़ेगा। आई होप आई वाज एबल टू आंसर। थैंक यू। प्लीज आपको कोई, अगर कोई और सवाल है, कोई और डाउट है, यू कैन आस्क। Okay, so I have a question. As you mentioned one thing, and it was when we are talking to anyone, and we are
and we are struggling while speaking. So we can think in this way that uh, when I'm taking break, the other person have to other person have to other person have to uh, wait. Right. So in this way, we are teaching the other person how to wait and how to be patient. So I think it is a very positive, very positive point which you spoke. It is only because when we think about others, like we are helping others, so it brings us, so it brings confidence in us, right? राइट राइट वेरी ट्रू। हम जब कुछ भी कर रहे हैं, सामने वाला ऑटोमेटिकली कुछ और रजिस्टर कर ही रहा है मन, राइट। सो वो सीख रहा है। कभी कभी होगा कि वो इंसान में पेशेंस नहीं होगा, वो कुछ बोल के या तो कुछ करके निकल जाएगा, ठीक है। हमें वही सोचना है कि हाँ, उसको शायद पेशेंस की और जरूरत है, उसको और वैसे लोग मिलना चाहिए तो वो और पेशेंस जल्दी लर्न करेगा, राइट। सो अगर नहीं भी होता है, बैक फायर भी होता है, वी आर स्टिल helping ourselves to know कि ये मेरा नहीं है, ये उसका ही है। That person needs to be patient. That person needs to learn how to be patient. So I pray he learns faster. है ना? तो वो फिर से अगर होगा कि अरे नहीं सुना उसने, ये तो बैकफायर हो गया, नहीं हुआ। He just needs to learn. अगर कोई जल्दी सीख गया, हमें उससे बोलना है कि हाँ, ये तो क्विक लर्नर था, वेरी गुड जॉब। Either ways for us it's win-win. रोहित? या सो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई एक कोई ऐसी छोटी सी ट्रिक है या फिर एक कोई छोटा सा एक्सरसाइज है, लाइक जिसको यूज करके हम फॉर द टाइम बीइंग, है ना, लाइक हम हमारी एंजाइटी कम कर सकते हैं, लाइक नाउ जस्ट फॉर एन लाइक अगर अभी आगे 15 मिनटों में आई वांट टू गिव अ प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ माय डायरेक्टर्स, and within such situation my anxiety is सुपर हाई। सो फिर क्या कोई फिर ऐसा कुछ है कि जिससे कि हम 5 to 10 मिनट्स में हमारी एंजाइटी कम कर सकते हैं? राइट राइट। सो ट्रिक्स है, क्विक फिक्स है, ओके, जो मैं डिस्कस करती हूँ। हाउएवर मैं पहले एम्फसाइज करूंगी कि दिमाग को वैसे ट्रेन करना है। सो बिफोर वी इवन एंटर दैट सिचुएशन, हमें पता है होता है यहाँ पे मैं एंशियस फील करती हूँ, तो यहाँ पे मैं नर्वस हो जाती हूँ, ठीक है। उसके पहले से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा एक्सरसाइज। तो वो टाइम पे अगर हम कर रहे हैं, 5-10 मिनट लगेगा, पर हम ग्राउंडेड फील करेंगे, हम थोड़ा सा बेटर फील करेंगे, है ना। The idea is to see हमारे थॉट्स, जो हमारे थॉट्स है ना, वो काफी इम्पोर्टेंट है, ओके। हम जैसे सोचते हैं, दिमाग जैसे सोच रहा है, ओके। काफी छोटी सी एक्टिविटी है। मैं अगर अभी बोलूँ आपको इन जनरल, डू नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, आप मुझे बताए क्या होता है। डू नॉट थिंक ऑफ एन एलिफेंट, क्या हुआ? We will start thinking about it. You start thinking of an elephant, है ना। अगर मैं अभी बोलूँ think of a red balloon, ओके, डिस्क्राइब कीजिए आपका रेड बलून को। जितना मैं सोच
पाया हूँ, there was just a red balloon without any strings attached. और कुछ नहीं सोच पाया. ओके ओके ग्रेट. रोमांटो सिर्फ बोला था रेड बलून, है ना? योर माइंड देन स्टार्टेड क्रिएटिंग. अगर मैंने और टाइम दिया होता तो आपका दिमाग आपको शेप भी बताता कि शेप कैसा है, कहाँ पे है, कहाँ लास्ट देखा था, है ना? सो ये थॉट्स है. अब क्या होता है कि काफी बार हम थॉट्स, जो दिमाग है वो हमें कंट्रोल कर रहा है ना? द आइडिया इज टू गेट आवर कंट्रोल. हम हमारे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं. जो हम थॉट्स जैसे हम खुद को बोलेंगे, दिमाग वैसे ही काम करेगा. दिमाग ना, जो इंसान का दिमाग होता है वो काफी क्यूरियस है. वो ना वर्ड नहीं ले सकता. ओके जो इंग्लिश ग्रामर में हम सीखते हैं नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंटेंसेस, एनर्जी वाइज नहीं, सेंटेंस में ही ना नहीं है ना? सो वो दिमाग नहीं एसोसिएट कर पाता. पर हम उसको वो बोले जो करना है. ओके तो क्या हो रहा है कि फोकस लाइट जो है दिमाग की वो एरिया में, वो सेक्शन में जाती है. ओके इफ आई से सकीना डोंट पैनिक, तो क्या होगा, दिमाग पहले करेगा कि पैनिक हो जाओ, अब तुम रिलैक्स करने की टेक्निक सुनो, है ना? अगर मैं दिमाग को वही बोलूं सकीना लेट्स जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन डीप ब्रीदिंग, रिवाइज योर कंटेंट, तो क्या होगा, दिमाग वहीं पे फोकस करेगा, है ना? दिमाग वो शैतान बच्चे की तरह, उसको ना बोलो वो जाके करेगा. उसको ना बोलना ही नहीं है, उसको वो बोलो जो हमें चाहिए वो करे. सो वो फिर वैसे ही काम करता है, वो डायरेक्शन में जाएगा दिमाग. दिस इज योर क्विक एक्टिविटी. जैसे आप खुद से बात करते हो, है ना? वहीं पे इट विल डू योर वंडर्स. द वे यू टॉक, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग हाउ यू टॉक टू योरसेल्फ. आई होप दैट हेल्प्स. एंड फिर जो दूसरी टेक्निक्स है वो है डीप ब्रीदिंग. Breathe in through your nose, breathe out through your mouth. Have some water, या तो थोड़ा सा एक कॉमेडी कंटेंट देख लिया, है ना? ये जो एक्टिविटीज है, या तो बॉडी को ऐसे शेक कर लिया, क्योंकि एंजाइटी में क्या होता है कि बॉडी में जो एनर्जी है वो काफी क्रिएट हो गई, इसीलिए वो पैल्पिटेशन होते हैं, हार्ट बीट पास हो जाते हैं, स्वेटिंग होता है, क्योंकि वो एनर्जी इतनी क्रिएट हो गई है. बॉडी को दिमाग क्योंकि फास्ट चल रहा है, दिमाग को एंड बॉडी को सेम लेवल पे लाइए. तो आपकी बॉडी शेक, जल्दी जल्दी चलिए, या तो भागिए, भाग तो नहीं पाओगे आप, एटलीस्ट आप चल सकते हो. तो शेक योर बॉडी एंड जस्ट इमेजिन कि ये जो एंजाइटी है ना वो चींटी की तरह है, तो वो चींटी ऐसे निकल रही है. इट विल अगेन हेल्प यू टू ग्राउंड. एनीथिंग एल्स रोहित? यस हाँ. सो अभी आपने जो बताया, सो मैं वो समझ गया. बट है ना, लाइक बट जस्ट टू अंडरस्टैंड इट even more better, so like अभी वही सिचुएशन कंटिन्यू करते हैं कि लाइक अगले 5 to 10 minutes में आई हैव टू सबमिट अ प्रेजेंटेशन टू माय कंपनी director. So then what kind of content should I give to my mind? What kind of content is coming to your mind right now? अगर वो imagine कर रहे हैं. I will be thinking कि like what if अगर मैं कुछ ज्यादा ही stammer कर गया, and then they might think that I am not competitive, and then I might not be getting a promotion and a good salary raise. Right. Now here, okay, is there anything you think we can change here? I can speak to myself. Am I audible? Okay. Yes, you are audible. Thank you. So then within this situation, I can change my thinking pattern कि like भले मैं stammer करूँ मैं, but my content is pretty strong.
सो अभी इस बार तो प्रमोशन पक्का ही है. Okay, okay, great. That is one way. Okay. Okay. Second, जो हम change कर सकते हैं, it's the questions that we ask to ourselves. Okay. Human brain is the most curious one among all the animal species, है ना? तो इसको जहां पे पूछ लेते हैं what if, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये सारे सवाल है. दिमाग क्या करता है, उसको ले लेता है, वो कुछ भी डिलीट नहीं करता, वो ले लेगा और आपको बताएगा व्हाट इफ, दिस इज इफ, है ना? तो हम वो सवाल ही नहीं पूछते, है ना? अगर सवाल पूछना है वो हमारे फेवर में पूछते हैं. व्हाट इफ आई गेट द प्रमोशन, फिर मैं वो पैसों का क्या करूंगा, मैं कहाँ पे पार्टी करूंगा, राइट? सो इट ऑटोमेटिकली विल टेक यू टू अ सेफ प्लेस, टू हैप्पी प्लेस. तो जहाँ पे एंजाइटी में, एंशियस स्टेट में अगर हम स्टैमर ज्यादा कर लेंगे, यहाँ पे हमने ऑलरेडी खुद को काम डाउन करा दिया है, फिर हम जा रहे हैं तो स्टैमरिंग भी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम होगा, राइट? Got it. So it's how we direct. हम the mind is a monkey mind, या तो डॉग का एग्जांपल ले लेते हैं. हम डॉग के साथ पता है वो फेच खेलते हैं, we throw the ball and they go fetch it. Okay, तो वही हम दिमाग के साथ करेंगे. We become very mindful what kind of questions or thoughts we are throwing it. ठीक है, वो वही पकड़ेगा और हमारे लिए वही करेगा. It will make things happen what we want. अगर उसको कोड इंस्ट्रक्शंस ठीक से दिए तो, सही से दिए तो. इट्स अ प्रैक्टिस, होएगा. Got it. Thank you once again. Thank you Rohit. And sorry, one last thing. And ये प्रैक्टिस करने के लिए भी we can meet in lounge meeting में, we can start doing it, or we can start in counseling sessions as well. We can change our self talk. तो कॉन्शियसली भी, जो अभी सबकॉन्शियसली कुछ और है ना, कॉन्शियसली वी चेंज इट, तो सबकॉन्शियसली भी वो सीख जाएगा, राइट? थ्रू पर्सनलाइज अप्रोच इट हैपेंस. ओके, Got it. Thank you once again. Thank you Rohit. Yes Pallavi. Yeah, I just wanted to add something here, something which I practice actually. It's a very basic technique. So, Rohil, what Sakina mentioned is very correct, like training our brain to focus on the right things. That is one aspect of it. But something which I have been practicing, being a person who actually have certain amount of anxiety. So just wanted to share that if at all it helps you. So what happens, our brain and body works in two ways. तो कई बार क्या होता है ना, हम ब्रेन हमारा जैसे सोचता है, हमारी बॉडी वैसे फंक्शन करती है. जो सकीना ने बोला कि आप जैसा सोचोगे हम वैसे ही पैनिक करते हैं. एक एंड वो है. दूसरा एंड ये है कि जहाँ पे हम अपनी बॉडी को जानबूझ के जबरदस्ती का ऐसा चीज करवाते हैं जो उल्टा सिग्नल ब्रेन को भेजता है. तो वो होता है ब्रीदिंग से. तो आप क्या कर सकते हो, हम एक्चुअली एक हैंडबुक शेयर करेंगे, सो यू कैन गो थ्रू दैट. उसमें होंगे काफी सारे टेक्निक्स, बट देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स विच आर अवेलेबल इन दोज ब्लॉक ब्रीदिंग बोलते हैं. तो मैं क्या करती हूँ, कई बार क्या होता है ना, जब यू आर इन दैट पैनिकी सिचुएशन, आप नहीं सोच पाते हो समटाइम्स. इट्स पर्टिकुलरली फॉर दैट, जो मेरे साथ बहुत होता है. तो पहला चीज है, सबसे पहले आप उस इमोशन से ध्यान हटाओ. तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन है, आप अपना ध्यान कैसे हटा सकते हो? इट्स जस्ट लाइक आप आपके हाथ में अगर पेन है, आप अपने पेन पे फोकस करना शुरू करो कि आपका पेन का डिटेल्स वगैरह. जब वो आपका फोकस वहां से हो जाए, देन यू स्टार्ट योर ब्रीदिंग. तो मैं ट्रायंगुलर ब्रीदिंग करती हूँ, ठीक है? तो जहाँ ABC 3 पॉइंट है, A से B में आपने ब्रीद इन किया, B पे आके रुके, फिर B से C में आप रुके, मतलब होल्ड किया, C से A में आप वापस ब्रीद आउट किया. तो ये जब आप 7 से 8 मिनट तक अगर आप कंटिन्यू करोगे, आपका बॉडी ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा. तो ये रिवर्स वे में सिग्नल भेजता है. तो दिस इज समथिंग विच यू कैन ट्राई जब आप यू आर नॉट इन अ स्टेट टू एक्चुअली थिंक. तो आप अपने बॉडी को ऐसे सिग्नल दे सकते हैं.
So this is what I do. So I just wanted to share that. Thank you for sharing. Thank you. Okay. हाँ जी हरुण, I'm so जी glad it's your मे- virtual hand and not your actual hand, वरना वो बहुत दर्द करता। कोई Please go. नो इशू। आपसे जो हमें सीखने को मिल रहा है, तो उसके मुकाबले में अगर मैं हाथ खड़ा भी रखूंगा तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि उनमें हेल्दी सेल्फ स्टीम की हैबिट डेवलप हो। Right, right. um जो हम जो सेल्फ टॉक की बात करते हैं ना हरुण, ओके, इट्स बेसिकली आवर अडल्ट्स वॉइस। एज अ चाइल्ड, जो मैंने मेरे आसपास जो मेरे बड़े थे, जो जैसे बात कर रहे थे, अगर मैं स्लो काम कर रही तो स्लो खाना खा रही और मेरी मम्मा ने बोला जल्दी जल्दी खा, टाइम निकलता जा रहा है, उन्होंने अपने 2 सीरियल खत्म कर दिया, उसमें टाइम नहीं निकला, मैं स्लो खा रही हूँ तो उसमें टाइम निकला, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी काम खा लो, ठीक है। मेरे टीचर ने बोला सकीना ये कैसा प्रेजेंटेशन दिया, ये सही नहीं है, तुम्हें कुछ ही नहीं आता। क्या हो रहा है, एज अ चाइल्ड हमारा जो दिमाग है, बड़े हो गए हमारा दिमाग है वो स्पॉन्ज है, वो ना ऐसे ये सारी चीजें सोख कर रहा है। एक बार सोख कर लिया, फिर जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, वही चीजें हम खुद को बोल रहे हैं। अगर मैं स्लो खा रही हूँ और मुझे पता है कि 5 मिनट में मीटिंग है, मेरा दिमाग यहाँ से वही वो टेप चलाएगा, सकीना जल्दी जल्दी खा, कितना टाइम लग रहा है तुम्हें, है ना। तो मैं अगर खाना छोड़ दूंगी, ठीक है, भूखा ही मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, या तो मैंने खाना ठीक से खाया ही नहीं, चबाया ही नहीं, ऐसे ही खा लिया, एंजॉय नहीं किया, मुझे 5 मिनट ही लगता है। पर अगर मेरा आवाज बोलता है सकीना ठीक है, ठीक से खा लो, सब धीरे से खाओ, आराम से खाओ, टाइम है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ऑटोमेटिकली मुझे भी टाइम पता है, मैं 5 का 3 मिनट में खा लूंगी। तो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी माइंडफुल कि वो बच्चे से क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, है ना। कि अगर ग्लास टूटता है बच्चे से, है ना, अगर पेरेंट्स डांट देते हैं बच्चे को, कांच का ग्लास और टूट गया, बच्चे को डांटा, तुम्हारी गलती है, ठीक है, बच्चा दिमाग में वही लेके जाएगा कि कुछ भी गलत होता है ये मेरी गलती है ना। ये कोई नहीं देख रहा कि वो कांच का ग्लास था, वो कांच की गलती है, वो कांच है तो टूट गया, स्टील का ग्लास होता तो माँ बाप को कुछ ही नहीं बोलते, है ना। सो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी केयरफुल, है ना, कि कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चे को वो टाइम पर। अगर पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि आई होप तुम्हें लगा ना हो, है ना, तो बच्चे को लगेगा कि हाँ ठीक है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, पहले तो वो क्लियर हो गया है, एंड मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, है ना। सो इन एनी अदर सिचुएशन अगर कुछ होता है, मैं डायरेक्टली खुद पे ब्लेम नहीं डालती, आई नो इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये होना था, अब इसको रिजॉल्व करते हैं। तो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि वो बच्चे से क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, एंड हर एक चीज पे अगर बच्चा, ये तो घर पे है पेरेंट्स करते हैं, बच्चे बाहर जा रहे हैं, दूसरे अडल्ट है ना, दूसरे टीचर्स है, वो बच्चे को क्या बोल रहे हैं, अब सबको जाके तो चेंज नहीं कर पाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स कि वो बच्चे को जाने कि उन्होंने स्कूल में क्या सीखा। अगर टीचर ने उनको डांटा, बच्चे को करेक्ट करिए, तुम्हारी गलती नहीं, ठीक है, तुम्हें जैसा करना था तुमने वैसा किया। अब जैसे टीचर को चाहिए, हम वैसा भी टीचर को करके दे देते कि टीचर खुश रहे, है ना। तो बच्चा वहां पे भी सीखेगा कि हाँ ठीक है, मुझे जो चाहिए था, जैसा करना था मैंने किया। So this is one very important thing parents can do. Parents can be very mindful about it कि वो क्या बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का जो सेल्फ टॉक होगा वो चेंज होगा, तो सेल्फ एस्टीम चेंज होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। Gayatri, you would like to add here something? Yes. So on the similar lines, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। तो अगर हम बच्चे को पेरेंट्स बार बार बोलते रहेंगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ ही नहीं रहे, तो बच्चा खुद भी यही समझ लगेगा कि मेरे अच्छे मार्क्स आने ही नहीं वाले हैं, तो मैं क्यों ही पढूं, तो रहने दो।
तो ऑटोमेटिकली ही नॉट स्टडी, अगेन मार्क्स कम आएंगे, फिर वापिस पेरेंट्स वही टेप स्टार्ट करेंगे, तुम क्यों ही पढ़ रहे हो, अच्छे मार्क्स तो आ ही नहीं रहे, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये साइकिल बनते जाता है। बट कभी भी पेरेंट्स बैठ के ये नहीं पूछेंगे कि क्यों नहीं, दे विल नॉट ट्राई एंड एनालाइज कि क्यों नहीं आ रहे अच्छे मार्क्स, या फिर बच्चे से पूछेंगे नहीं। हमारे भी पेरेंट्स एज अ किड व्हेन वी वर देयर, अच्छे मार्क्स आए, ये नहीं पूछेंगे क्यों नहीं आए, नहीं आए अच्छे मार्क्स ना मतलब तुमने पढ़ाई नहीं की होगी। सो वो जो पेरेंट्स के साथ कॉन्वर्जेशन है, पेरेंट्स नीड टू चेंज देयर सेल्फ टॉक फर्स्ट, सो दैट वो बच्चे के सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर पाए। एंड अनदर थिंग इज इट एक्चुअली अफेक्ट्स कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं बच्चे को। आई विल गिव माय ओन एग्जांपल। आज तक मुझे एंजाइटी एग्जाम के टाइम पे नहीं होती, कभी भी नहीं। आई एम वेरी चिल्ड ड्यूरिंग द एग्जाम, बट आफ्टर द एग्जाम जब पेपर्स मिलने वाले होते हैं या जब रिजल्ट होता है, मुझे एंजाइटी होती है तब। बिकॉज ऑलवेज माई मदर यूज टू बी लाइक, शी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि कितने मार्क्स मिल रहे हैं। शी वॉज लाइक इवन अगर नहीं हुआ, ट्राई टू बी एट द टॉप, ट्राई टू बी एट द टॉप। जो मेरे पे इतना प्रेशर बनता था एज अ किड, तो अभी तक मेरे में वो एंजाइटी है कि वेन एवर ड्यूरिंग द एग्जाम आई एम वेरी रिलैक्स्ड, बट एग्जाम खत्म होने के बाद जब पेपर मिलने का टाइम होता है, मुझे बहुत एंजाइटी होती है। सो वो चाइल्डहुड से ही पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे क्या बात करनी है बच्चों से। Yes, that's जी, it. Yeah, Harmanji. उन्होंने अपने डॉटर का एग्जाम्पल दिया कि वो सेम होता है। सो वही चीज, जैसे जो फर्स्ट वर्कशॉप अगर आपने अटेंड किया है या तो आपको टाइम है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो। जो हमने काम किया था वो था सेल्फ टॉक पे, कि खुद से प्यार से कैसे बात करते हैं, हम खुद को कैसे समझा देते कि गलती है, हो जाती है, ठीक है, उसको सुधारे कैसे, है ना। गलती पे आप डांटते ही जा रहे हो, वो टाइम में तो सुधर भी जाती है। वही चीज हम सीखते हैं, and वही चीज हम अगर बच्चे में करते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली आगे जाके काफी कॉन्फिडेंट बिहेव करता है। उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, खुद पे जो भरोसा होता है, वो काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि पेरेंट्स का भरोसा इतना स्ट्रांग था बच्चे पे। ओके, थैंक यू, थैंक यू हरुण। Yes, Pallavi. I think I raised it by mistake, but because I wanted to cover the point you were saying, but I'll just add something to it anyways. एक और चीज लाइक जो सकीना ने मेंशन किया कि वो गलती वाला, लाइक इट हेल्प्स टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चाइल्ड। तो जब भी एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जो उनके लिए न्यू होती है। तो वो एक क्रिटिकल पॉइंट होता है जहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं नहीं ये ऐसे नहीं करना है, या फिर अरे ये क्यों किया। तो उनको वो एक्सप्लोर करने देना चाहिए। अगर उन्होंने गलती की तो इट्स ओके, एज अ पेरेंट वी शुड सपोर्ट। और अगर वो सक्सेसफुल हुए तो इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि उनको थोड़ा सा चीयर अप किया जाए। उससे भी होता है कि बच्चों का थोड़ा कॉन्फिडेंस वो रहता है। अगेन लाइक हाउ गायत्री गिव हर एग्जांपल, आई विल गिव माइन। तो मेरे फादर इज लाइक वेरी थोड़े से ज्यादा डरते हैं चीजों को लेके, मतलब मेरे केस में तो हमेशा से ही हैज बीन वेरी ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ मी। तो हमेशा कुछ भी नया रहता था तो ही यूज्ड टू बी लाइक नहीं 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 करना है, मतलब हो जाएगा कुछ ऐसा, ये वाला सिचुएशन रहता था। सो इट वाज अ रियली स्ट्रगल फॉर मी, क्योंकि अभी तो खैर काफी कम है, बट देयर वाज अ पॉइंट कि जहाँ पे मुझे काफी डर लगता था किसी भी नए सिचुएशन में, या क्योंकि मेरे में वो कॉन्फिडेंस था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कि अरे। सो आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स, और वो भी एक एंजाइटी का रीजन रहता है। तो और वो जब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है तो सेल्फ एस्टीम एनीवेज इफेक्ट होता है। सो आई थिंक ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है फॉर किड्स व्हाइल दे आर ग्रोइंग अप। सो या, Thank you for sharing. Okay, we'll take another 5 minutes. Is there anything else someone would like to share, ask,
discuss. Okay, I would like to say one thing. I think in this whole session, you also have to you all. I mean, as you have as you have observed, all the other people who are in the meeting, they are not taking part. So you have to ask. Uh, you have to ask them individually. I think in this way only all those people who would be responding. Otherwise, I think all the other people's won't be responding. So yeah. So ultimately, I mean, yeah, you have to you have to force all those people to speak. Okay. Okay. We can try and work on that. We are just not sure कि ऐसा ना हो कि वो फोर्स से वो ऐसा स्पॉटलाइट आ गई है, सो वो यहाँ पे सेफ ना फील करे शेयर करने के लिए, है ना. बट वी कैन ट्राई एंड कीप दैट इन माइंड एंड गिव दैट स्पेस कि जैसे उनको भी थोड़ा सा चांस मिले एंड जैसे वो सेफ फील करे दे कैन शेयर. थैंक यू अमन. ये इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हम उनसे कहें कि वो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख के शेयर कर लें. तो आपको जो क्वेश्चन लगता है कि ये आंसरेबल हो, तो आप उसका नाम पर्सन का लेके उसको आंसर कर सके. लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हम लोग सारे सेम पेज पर हैं, हमसे किसी का कुछ छुपा हुआ नहीं है. तो अगर हम इस चैट रूम में, इस सेशन में अगर आ ही गए हैं, तो हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. थैंक यू. सो फॉर अ टाइम बीन हम स्टार्ट कर सकते हैं कि चैट पे थोड़ा सा आप टाइप करके बताइए. जैसे जैसे हम फिर वो एनकरेज करेंगे, हेल्प करेंगे कि, और हम वो ये स्पेस इतना सेफ फील करेंगे कि आप हमें चांस मिला आपकी आवाज सुनने का भी. Great. Thank you, Harun. Thank you, Aman. Cool. Anything else? No? Okay. Thank you so much for attending the workshop, for sharing your beautiful experiences and adding those beauty in this world. Let's take this world with us. हमने इसको भर दिया है ना. जहां जहां भी लगे कि हाँ ये खाली हो रहा है, वैसे वैसे हम भरते जाएंगे. ठीक है. आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, है ना. Cool. Great. Thank you so much. Good night. Goodbye, Yes. Bye-bye. everyone. Yeah. Good night, everyone. Good night. Bye bye.